کیا کہ پورا پاکستان اس وقت سراپا احتجاج بنا ہوا ہے اور اس کا میجر جو ایشو ہے وہ ہے بجلی کے بلوں کا. ایک بجلی کے بل میں 13-14 ایکسٹرا ٹیکس لگے ہوا ہے جس کا کوئی تکے نہیں بنتا اس کو لگانے کا. یہ جو انڈائریکٹ ٹیکسز کے اوپر بھی بات ہوئی ہے اور یہ بجلی کے بلوں کے اوپر دیکھیں آئی پی پیز کا مدعا بھی اٹھایا پریزیڈنٹ صاحب نے. 40 لوگ ہیں جو بینیفیشری ہیں, 24 کروڑ عوام کا پیسہ ڈالروں میں پیمنٹ لے رہے ہیں اور صرف 40 لوگ ہیں, 40 خاندان ہیں جو اس پیمنٹ سے مستفید ہو رہے ہیں. 1 جولائی کو تاجر برادری پورے ملک میں شام 4 بجے سخت احتجاج کرے گی. پورے ملک میں ہر ضلع اور تحصیل میں احتجاج کیا جائے گا انشاءاللہ. اور میری عوام سے بھی گزارش ہے کہ اس احتجاج میں شامل ہو جائیں. آئی ایس کو سے یا جو بھی بجلی کے محکمہ ہیں ان کے جو میٹر ریڈر ہیں وہ بھی ستم اتنے ظالم ہو چکے ہیں کہ وہ ہمارے پاس ایک کیس آیا کہ اس کی ریڈنگ اگر 10 تاریخ کو تھی تو وہ 12 کو ہوئی تو وہ 200 یونٹوں سے 2 یونٹ بڑھ گئی. 20% بجلی کے بل کے اوپر 21% یہ سیل ٹیکس وصول کر رہے ہیں. میں بل دکھا دیتا ہوں آپ کو. 16% یہ انکم ٹیکس وصول کر رہے ہیں. 37% ہو گیا. اس کے علاوہ ایف سی سرچارج ہے, فیول ایڈجسٹمنٹ ہے, فردر ٹیکس ہے, ایکسٹرا فلانا ٹیکس ہے. او بھائی خدا کے لیے بس کر دو یار. ایک دوست سے بات ہوئی تو کہتے ہیں 2 لاکھ روپے بل ہے 800 سکوائر فٹ دکان کا, جو پچھلے سال آتا تھا 40-50 ہزار میں. تو وہ کہہ رہا تھا یار میں اب کرایہ اور بل تو بند نہیں کر سکتا, میں 6 ملازموں میں سے 4 کو فارغ کر دیتا ہوں. گورنمنٹ یہ دیکھے گی کہ بے روزگاری کتنی بڑھے گی. آپ مجھے بتائیں بجلی کا میٹر تو کوئی نہیں کٹوائے گا. 2 وقت کی روٹی کے لیے جو ہے وہ پریشان تھا. آج 200 جو یونٹ ہے بجلی کے اس کے لیے وہ پریشان ہے. اس کو روٹی بھولی ہوئی ہے, بچوں کی جو ہے وہ دودھ جو ہے وہ بھول گئے ہیں اور صرف یہ فکر ہے کہ کس طرح میں نے اپنا بجلی کا بل جمع کرا. 48,000 بجلی کے ہم پیمنٹ کر رہے ہیں میگا واٹ کی. ضرورت ہمیں 22,000 کی ہے شاید. او بھائی باقی کے پیسے ہم کیوں دے رہے ہیں جب ہماری ضرورت ہی نہیں ہے. یہ کمپنیاں ہیں کس کی ہیں؟ آپ ہی کی ہیں. سب جتنے بھی بڑے ہیں اوپر حکومتوں میں بیٹھے ہیں یہ کمپنیاں بھی آپ ہی کی ہیں اور آپ ڈالروں میں اس کے پیسے لے رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب اگر حکومت آپ سے نہیں چل رہی ہے تو برائے مہربانی چھوڑ دیں. عوام پر اتنا ظلم نہ کریں. 2.5 سال سے آپ ظلم کرتے آ رہے ہیں. حکومت نے کیا کیا ہے کہ 200 یونٹ ہوں گے تو بل تھوڑا سا ہوگا, شاید 7 روپے یا 8 روپے یونٹ ہوگا. لیکن 201 روپے ہو جائیں گے تو پھر وہ بل 8,000 روپے کا ہو جائے گا. اور اتفاق سے میں سمجھتا تھا کہ یہ سوشل میڈیا پہ ہمیں چل رہا ہے. میرا اپنا ذاتی ایک بل آ گیا ہے جو 208 یونٹ کا ہے, 8,000 کچھ روپے کا بل ہے. اگر ڈیٹ ڈیو ہوگی تو 9,000 کچھ روپے کا ہے. گزارش یہ ہے کہ ایک غریب آدمی یا ایک تاجر کیا میٹر پہ بٹن لگا ہوا ہے کہ جب اس کے 199 یونٹ ہو جائیں گے تو وہ اس پہ بٹن پہ ہاتھ رکھ دے گا کہ آگے مجھے 10 دن بجلی نہیں چاہیے. وزیر اعظم صاحب اگر حکومت آپ سے نہیں چل رہی ہے تو برائے مہربانی چھوڑ دیں. عوام پر اتنا ظلم نہ کریں. 2.5 سال سے آپ ظلم کرتے آ رہے ہیں. نگران آپ لائے, انہوں نے بھی بیچ میں انتہا کے ظلم کر دیے. آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ نے دیکھیے میں نہیں کہہ رہا ہوں, آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ہیں حکومت کے, وہ اول تو یہ کمپنیاں ہیں کس کی ہیں؟ آپ ہی کی ہیں. سب جتنے بھی بڑے ہیں اوپر حکومتوں میں بیٹھے ہیں یہ کمپنیاں بھی آپ ہی کی ہیں اور آپ ڈالروں میں اس کے پیسے لے رہے ہیں. 48,000 ایک اخبار کی خبر ہے, انگلش اخبار کی, کہ 48,000 بجلی کہ ہم پیمنٹ کر رہے ہیں میگا واٹ کی. ضرورت ہمیں 22,000 کی ہے شاید. او بھائی باقی کے پیسے ہم کیوں دے رہے ہیں جب ہماری ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ جو ضرورت نہیں ہے باقی پیسے لوگوں کی جیب میں جا رہے ہیں اور عوام سے آپ 2.25 لاکھ میگا واٹ کے حساب سے پیسے وصول کر رہے ہیں. اب ہمیں کہتے ہیں کہ تاجر چور ہے, تاجر ٹیکس نہیں دیتے ہیں. ہر تاجر جو پورے ملک میں 1.25 کروڑ کے لگ بھگ ہے, میں حلف دے کے کہتا ہوں کہ سارے ٹیکس دے رہے ہیں. اب
बिजली के बिल के ऊपर 21% ये सेल टैक्स वसूल कर रहे हैं। मैं बिल दिखा देता हूं आपको। 16% ये इनकम टैक्स वसूल कर रहे हैं, 37% हो गया। इसके अलावा एफसी सरचार्ज है, फ्यूल एडजस्टमेंट है, फर्दर टैक्स है, एक्स्ट्रा फलाना टैक्स है। ओ भाई खुदा के लिए बस कर दो यार, ये पैसे जा कहां रहे हैं? आप अय्याशियां कर रहे हैं और आवाम मर रही है। लिहाजा यकम जुलाई को ताजिर बरादरी पूरे मुल्क में शाम 4 बजे सख्त एहतजाज करेगी। पूरे मुल्क में हर जिला और तहसील में एहतजाज किया जाएगा इंशाल्लाह। और मेरी आवाम से भी गुजारिश है कि इस एहतजाज में शामिल हो जाएं। अगर आपने मुल्क बचाना है, अपने आप को बचाना है और इन हुक्मरानों की अय्याशियां खत्म करनी है तो खुदा के लिए बाहर निकल आओ। 1 जुलाई बरोज सोमवार शाम 4 बजे पूरे पाकिस्तान में जिले सतह पे, तहसील सतह पे, यूनियन काउंसिल सतह पे, जहां भी ताजिर बसता है, हर सड़क पे एहतजाज के लिए इंशाल्लाह खड़ा होगा। और हम हुकूमत को वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि सोमवार से पहले 1 जुलाई से पहले ये जो जुल्म किया आपने ये वापस कर लें, नहीं तो उसके बाद हम उस दिन एक और ऐलान करेंगे इंशाल्लाह। आगे ये 1 जुलाई को करेंगे जब हम एहतजाज में खड़े होंगे। जुल्म की इंतहा कर रखी है और अपने इखराजात कम करने के लिए तैयार नहीं है। मुफ्त बिजली, मुफ्त पेट्रोल, मुफ्त गाड़ियां, मुफ्त घर, मुफ्त, ये क्या है? ये सारी मराद। ये कहते हैं कि आप टैक्स नहीं देते। भाई टैक्स और देता कौन है? जब बात आती है सरकारी मुलाजमीन 360 अरब रुपया टैक्स देते हैं। ओ भाई खुदा के लिए यार, ये बात कोई पढ़ा लिखा बंदा करे तो अफसोस होता है कि भाई सरकारी मुलाजिम को तनख्वाह कहां से मिलती है? हमारे भाई हैं, उनको तनख्वाह मिलती है ताजिर और सनतकार के दिए हुए टैक्स से। 17,000 अरब रुपया कुल ताजिर पाकिस्तान का और सनतकार, उसमें इंपोर्टर भी है, एक्सपोर्टर भी है, रिटेलर भी है, सनतकार भी है। 17,000 अरब रुपया इनको अदा करता है। ये नहीं बताते वो खर्च कहां होता है। 6,000 अरब रुपए का पता चला पिछले दिनों। एक मिनिस्टर साहब ने हमारे फंक्शन में कहा कि 6,000 अरब एफपीआर खा जाता है, चोरी कर लेता है। तो इसका मतलब है मुल्क में 23,000 अरब रुपया टैक्स। आपको तो जरूरत ही नहीं है यार कुछ करने की, ये जुल्म करने की लोगों पे कि आप बिजली के बिल आप बढ़ा रहे हैं, गैस के, जब आप पैसे, पता नहीं ये पैसे जा कहां रहे हैं। एक तो पता चला है कि हम अपने इसमें एमएनओ को, एमपीओ को आप बांट देते हैं, अरब रुपया बांट देते हैं, 50-50 करोड़ रुपया बांट देते हैं। कोई एमएनए ले, कोई एमपीए ले ले, कोई सेनेटर ले ले, कोई मिनिस्टर, मुशीर, वजीर ले ले। 8-8, 10-10 करोड़ से नीचे गाड़ी नहीं है उनके पास। एक नहीं है, 2-2, 4-4 है। ओ भाई खुदा के लिए इस मुल्क पर रहम करो, ये गाड़ियां खड़ी करो, तमाम सरकारी गाड़ियां बड़ी खड़ी करो, छोटी गाड़ियां इस्तेमाल करो। भाई अफसरान से भी मेरी गुजारिश है, ब्यूरोक्रेट से भी मेरी गुजारिश है। एक डिप्टी कमिश्नर को आपने 2.5 करोड़ की फॉर्च्यूनर किस चक्कर में दी हुई है? आपने एसीओ को वीगो किस चक्कर में दी हुई है? ओ भाई उन्होंने कौन सा डाकू पकड़ा है? चले किसी पुलिस अफसर को देते तो हमें पता चलता कोई डाकू पकड़ लिया है, कोई चोर पकड़ लिया है। लेकिन आपने ऐसे अफसरान को यार, इनको कल्टस गाड़ियां दें खुदा के लिए, कल्टस गाड़ियों पे जी आए, कम पेट्रोल। जब आप अपने खराजात कम नहीं करेंगे, मुल्क की आमदन है कोई नहीं है, हर इदारा आपका खसारे में है, तो आप कर क्या रहे हैं? ये अवाम पे बोझ डाले जा रहे हैं। आप तो कश्मीर की हालत होने वाली है, जो कुछ आजाद कश्मीर में हुआ है, मुझे लगता है कि इधर भी यही कुछ होने वाला है। क्योंकि अब बस हो गई है अवाम की। यकीन करें, लोग हमें कह रहे हैं कि हम बिल कोई नहीं जमा कराएंगे, तो मैं क्या कहूं उनको? हर बंदा कह रहा है जी बिल जमा कराने के लिए हमारे पास सख्त नहीं है। इस वक्त दुकानदार की ये हालत है, मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूं, खरीदार में सख्त नहीं है तो दुकानदार खाली बैठा हुआ है, सनत बंद पड़ी है, इंपोर्ट कोई नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है, सनत बंद है। किसान को आपने सड़क पे बैठा दिया, गंदम के ऊपर बैठा हुआ है, उसके साथ इतना बड़ा जुल्म किया और कहते हैं जी ज़राई टैक्स कोई नहीं है। मैं साबित कर देता हूँ ज़राई टैक्स है। 14,000 रुपए की जो खाद की बोरी आप देते हैं, मैं किसान का बेटा भी हूँ, वो इंडिया में 4,000 रुपए की है।
सरकार देती है ना, आप 7-10 हजार रुपए 6 माह का टैक्स ले रहे हैं, हर एकड़ पर 20,000 रुपए हुकूमत हर एकड़ पर 20,000 उनसे भी टैक्स ले रही है और बताती नहीं है कि ये टैक्स किधर जाता है। कोई बंदा ऐसा नहीं है यार, इनडायरेक्ट टैक्स इतने लगा दिए और एफपीआर को आपने पाला हुआ है सिर्फ 10% के लिए। जब 10% टैक्स इकट्ठा करने के लिए इतने लाख लोग आपने इकट्ठे किए हैं पूरे मुल्क में, जो आपका पैसा ही सारा खा जाते हैं, शौकत अजीज की तर्ज पे आए, इस महकमे से हमारी जान छुड़ाएं, ज्यादा टैक्स 3 गुना ज्यादा टैक्स ले लें, लेकिन वजीर आजम साहब बिजली के बिलों में जो ज्यादती की है आपने वो वापस लेनी होगी। जो एक और टैक्स भी लगाया है शायद मिनिमम 200 रुपए है और मैक्सिमम 1,000 रुपए है, वो भी हर एक पे लागू होगा। और यार आप क्या कर रहे हैं? 14,760 रुपए बिल है, 14,760 रुपए एक्चुअल बिजली की कीमत एक बिल की जो मेरे पास मौजूद है 25,000 रुपए, बाकी उस पे टैक्स है, मतलब टोटल अमाउंट 25,000 है, यानी आपने 60% टैक्स आयद कर दिए, तो गरीब तो मर जाएगा भाई। अब मुझे लग रहा है कि इसका हाथ होगा और आपका गिरबान होगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं हमारे पास। मैं जदून साहब से गुजारिश करूंगा कि आप बात करें फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया मैं सबसे गुजारिश करूंगा, ये जो हमारे मरकजी सदर जनाब अजमल बलोच साहब ने आपके सामने पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। देखें, इस वक्त जो हमारे मसाइल हैं, ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर भी बात हुई है और ये बिजली के बिलों के ऊपर, देखें आईपीपीस का मुद्दा भी उठाया प्रेसिडेंट साहब ने। 40 लोग हैं जो बेनिफिशियरी हैं, 24 करोड़ आवाम का पैसा डॉलरों में पेमेंट ले रहे हैं और सिर्फ 40 लोग हैं, 40 खानदान हैं जो इस पेमेंट से मुस्तफीद हो रहे हैं। दुनिया में कहीं भी कोई भी प्रोडक्ट बनती है, जो कोई कंज्यूमर होता है प्रोडक्ट खरीदता है तो उसकी पेमेंट करता है। गवर्नमेंट ने उस वक्त जो मुआहदे किए, ठीक है 2013 में क्राइसिस थे बिजली के, हमारा मुल्क उस वक्त अंधेरों में था, हमें जरूरत थी, मगर अब हमारे डैम बन चुके हैं, सुखी किनारे कंप्लीट है, बादशाह के ऊपर काम हो रहा है, आप हाइडल की तरफ जाएं, आप ये जितने भी मुआहदे किए हैं आपने आईपीपीस के साथ उनको रिव्यू करें, डॉलर में पेमेंट कर रहे हैं और आवाम के ऊपर जो गरीब आदमी है, जैसा कि उन्होंने फरमाया कि 200 यूनिट से ऊपर जाएगा तो उसको टैक्स बढ़ के डबल हो जाएगा, जो उसका बिल है हम कहां से अफोर्ड कर सकते हैं। तो बराए मेहरबानी आप इसके ऊपर नजरसानी करें, इसको फिर फोर वापस लें और जो फिक्स टैक्स की तरफ भी जा रहे हैं 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, उसको भी हम मुतालबा करते हैं कि आप वापस लें और हमें इससे रिलीफ दें। आप ताजिरों को मजबूर न करें रोडों पे आ जाएं। हम नहीं चाहते कि हम प्रोटेस्ट में जाएं, हड़ताल में जाएं, मगर गवर्नमेंट ऐसे इनिशिएटिव उठा रही है, हमें मजबूर कर रही है। इंशाल्लाह ताला हम मंडे वाले दिन 1 जुलाई को ये एहतजाज भी रिकॉर्ड कराएंगे और उसके बाद जो हमारे सदर हमें आर्डर देंगे उसको भी हम फॉलो करेंगे। बहुत शुक्रिया। बात करें। हेलो, ये जो हमने ऐलान किया है पाकिस्तान के तमाम सूबों के साथ, बलूचिस्तान से अब्दुल हलीम काकर साहब जो हमारे सदर हैं, खैबर पख्तूनख्वा से हाजी मीर इलाही साहब जो हमारे सदर हैं, सिंध से कयूम कुरैशी साहब हमारे सदर हैं, कराची से जमील पुराचा साहब हैं, शर्जील गोपलानी साहब हैं, जनूबी पंजाब से तारिक करीम साहब हैं और पंजाब के प्रेसिडेंट हमारे हज पे गए हैं, उनके नायब सदर यहाँ मौजूद हैं। तो ये ऐलान पूरे तमाम सूबों से, आजाद कश्मीर में भी हमारे इफ्तिखार फरोज साहब हैं, शौकत मीर साहब हैं, उन सब से बात हो चुकी है, लेकिन कश्मीरियों का शुक्रिया, उन्होंने मसला हल कर लिया अपना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और मेरे तमाम ताजर बरादरी के रहनुमा जो यहाँ मौजूद है, कायदे मोहतरम जनाब अजमल बलोच साहब, आज ये इंतहाई शॉर्ट नोटिस पर हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बलोच साहब ने तलब की है और ये एक पल्स थी जिसको बलोच साहब ने महसूस किया कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त सरापा एहतजाज बना हुआ है और उसका मेजर जो इशू है वो है बिजली के बिलों का। एक बिजली के बिल में 13-14 एक्स्ट्रा टैक्स लगे हुए हैं जिसका कोई तुक्के नहीं बनता इसको लगाने का। और ये सूरत हाल ऐसी है कि मैं आपको ये बात बताऊं, मैं आप भाइयों के ताउन से हुकूमत वक्त को बताना चाहता हूं कि ये वो वक्त आ गया है कि
हुकूमत इस वक्त खड़ी हो गई अगर, तो आपके लिए अपना बचाना अपने आप को मुश्किल होगा। हम बगैर किसी सियासी एजेंडे के यहाँ पर बैठे हैं और आज ये पोजीशन है कि ये बिजली के बिल आपके लिए कोई हुकूमत रुखसत करने का सबब ना बन जाए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये मसला अवाम का भी बन गया है, ताजिर का भी बन गया है, एक आम शख्स जो है उसका बन गया है। उसके अलावा आप देखें, हर ताजिर टैक्स देता है, अवाम का हर बंदा टैक्स देता है। क्यों टैक्स देता है? बिजली के बिल में टैक्स लग कर आता है। ये नायली हुकूमत वक्त की है जो टैक्स नहीं वसूल कर सकते। असल बात यह है कि टैक्स इतना इकट्ठा होता है, जो बलवान साहब ने बात की, 35-35, 36-36 गाड़ियों के काफिले, आप देखें वीडियो अब तो सामने आती है, लेकर फिर रहे हैं, अवाम का खून चूस रहे हैं। अगर ये लोग ख्वाहिशानी करें तो ये मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो सकती है, वरना ये किसी सूरत नहीं चल सकता इस तरह मुल्क। हमारे वजीर आजम साहब ने हाउस में खड़े होकर ये कहा है कि ये बजट IMF ने बना कर दिया है। मैं समझता हूं उनको शर्म आनी चाहिए थी ये बात करते हुए कि ये जमहूरी वजीर आजम है जो IMF से बजट बनवा कर और पेश कर रहा है और फिर उसको तस्लीम कर रहा है, और इसलिए इतना महंगा वजीर खजाना किस बात के लिए रखा गया है? शेम करनी चाहिए इसके ऊपर कि हम इस काबिल भी नहीं है। तो मैं अपने कायद की तायीद करता हूं इस बात की कि पीर वाले दिन इंशाअल्लाह ताला हम सब अपने अपने इलाकों में सरापा एहतजाज होंगे, अवाम भी साथ होगी, सोशल मीडिया के भी लोगों से मेरी दरख्वास्त है, इसके अलावा तमाम ताजिर बरादरी से दरख्वास्त है कि हमारा साथ है। ये हमारा मसला सबका मसला है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये आवाज बहुत अवाम तक जाएगी। तारिक जदून साहब यहाँ बैठे हैं, मैं सरदार साकिब, सदर फर्नीचर एसोसिएशन रावलपिंडी। मैं इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि मरकजी अंजुमन तालिबान आल पाकिस्तान के सदर जनाब अजमल बलोच ने 1 जुलाई को जो एक एहतजाजी मुजाहरे की कॉल दी है, हम उसमें भरपूर शिरकत करेंगे। और इसमें एक आखिरी बात करता जाऊँ कि हमें महकमा ISCO से या जो भी बिजली के महकमा हैं, उनके जो मीटर रीडर हैं वो भी सितम इतने जालिम हो चुके हैं कि वो हमारे पास एक केस आया कि उसकी रीडिंग अगर 10 तारीख को थी तो वो 12 को हुई, तो वो 200 यूनिटों से 2 यूनिट बढ़ गए, तो जो उसका 7 रुपये यूनिट बिजली का बिल आना था वो 8,000 रुपये मुंतकिल हो गया। तो इसमें भी आपके गोश गुजार करता जाऊँ कि महकमे की जो अमला है, जो मीटर रीडर है, वो भी इस जुल्म में बराबर का शरीक है। बाकी मैं अजमल बलोच साहब के साथ शाना पिछाना हम खड़े हैं एज एसोसिएशन, और अगर इस एहतजाजी मुजाहरे से पहले हुकूमत ने अकल के नाखुन ना लिए तो इंशाअल्लाह ताला पूरे मुल्क की एक हड़ताल का ऐलान जब भी हमारी मरकजी क़यादत करेगी, इंशाअल्लाह ताला हम पूरा शमूलियत इख्तियार करेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी बात यह है जी कि गरीब बंदा और मतवस्त तबका जो है, जो कि आज से कुछ अर्सा कबल तक 2 वक्त की रोटी के लिए जो है वो परेशान था, आज 200 जो यूनिट है बिजली के उसके लिए वो परेशान है। उसको रोटी भूली हुई है, बच्चों की जो है वो दूध जो है वो भूल गए, और सिर्फ ये फिक्र है कि किस तरह मैंने अपना बिजली का बिल जमा करवाना है। मैं इस मौके पर पहली तो बात यह है कि जनाब अजमल बलोच साहब आपकी तारीफ करता हूँ, अपनी तरफ से, अपनी मार्केट की तरफ से, इस्लामाबाद की तमाम मार्केट की तरफ से, जो हमारे यहाँ पे सरबराह बैठे हैं, कि हम इंशाअल्लाह ताला उस एहतजाज में भरपूर शिरकत करेंगे। और उसके बाद मैं ये कहूँगा कि जी पार्लियामेंट के अंदर जो हमारे अपोजिशन बैठी हुई है, उनसे मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप डे 1 से 1 या 2 एजेंडे हैं आपके, या तो इलेक्शन में धांधली होगी या फलां को बाहर निकालें, फलां को अंदर करें। जो असल इशू है, जो अवाम के जो मसाइल और खासतौर पे जो बिजली के जो कीमतें दिन ब दिन बढ़ रही हैं, उसके ऊपर ना पार्लियामेंट के अंदर वो बात करते हैं, ना उसकी वजह से वो रोड के ऊपर आते हैं। तो मैं ये अपने कायद से ये गुजारिश करूंगा कि आप अपोजिशन लीडर जो हैं, जो अपोजिशन जमाते हैं, उनसे भी मिलें ताकि वो भी हमारे साथ एहतजाज में शरीक हों। और गली मोहल्ले से भी जो बच्चे, जो खवातीन हैं, जो इस तरह घरों के घर जो वो डिस्टर्ब हो चुके हैं, इस जो है जो लोगों का अपना जो घर का बजट है वो डिस्टर्ब हो चुके हैं, उन लोगों को भी मोटिवेट करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला 1 जुलाई को भरपूर एहतजाज होगा, और वो एहतजाज फिर आगे उसको हमने कंटिन्यू रखना है। अभी कीनिया के अंदर एहतजाज हुआ है, आपके सामने सारा, उन्होंने घुटनों पे टेक दिया उस गवर्नमेंट को और अपना मुतालबा बनवा लिया। तो फिर हमारा ये क्यों नहीं है? हम कुड़ते रहते हैं, आपस में डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन बाहर नहीं आते हैं। इसमें मैं साफी भाइयों से भी कहूंगा कि आपके भी बिजली के बिल आते हैं, दूसरे भाइयों से भी कहूंगा ताजिर सिर्फ इससे मुतासर नहीं है, सब
पाकिस्तान के अंदर जितनी भी इकाइयाँ वो सारी रोड के ऊपर आए इंशाअल्लाह ताला, और यकम जुलाई को भरपूर किस्म का एहतजाज होना चाहिए। मरकज मैं भाई साहब आपको एक बात बताना चाहता हूँ अपनी मार्केट की। मैं कल एक दोस्त से बात हुई तो कहते हैं 2 लाख रुपए बिल आया 800 स्क्वायर फुट दुकान का, जो पिछले साल आता था 40-50 हज़ार में। तो कह रहा था यार मैं अब किराया और बिल तो बंद नहीं कर सकता, मैं 6 मुलाजमों में से 4 को फारिग कर देता हूँ। गवर्नमेंट ये देखेगी कि बेरोजगारी कितनी बढ़ेगी। आप मुझे बताएं, बिल बिजली का मीटर तो कोई नहीं कटवाएगा, और जो पीक आवर है जिस वक्त गर्मी के दिनों में लोग घरों से बाहर निकलते हैं 5 से लेकर रात 10 बजे तक है, उस वक्त बिजली का रेट क्या है। तो मैं ये गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा कि मुल्क में पहले बेरोजगारी और बेरोजगारी न बढ़े। ऐसी आप सब लोग जनासों में आते रहते हैं, ये फ्रेंचाइजियां बड़ी, वो अपने मुलाजमों को निकाल रहे हैं। एक मुलाजिम निकालने से एक पूरा घराना डिस्टर्ब हो रहा है। तो आप ये देखेंगे, देखिए ना रेंट बंद कर सकते हैं, ना बिजली का बिल बंद कर सकते हैं, क्या करेंगे, सारा वो सामने मुलाजमों में निकालेंगे, और एक मुलाजिम एक घराना, और जिस शॉप पे 6 में से 4 निकाले 4 घराने डिस्टर्ब हो गए। तो आप ये देखेंगे कितनी शॉपों, कितनी फ्रेंचाइज पे ये प्रैक्टिस हो रही है। तो मैं रोहित साहब आपको बिल्कुल यकीन दिलाता हूँ, जना सुपर मार्केट आपके साथ खड़ी है, और 1 जुलाई को इंशाल्लाह भरपूर तरीके से हम निकलेंगे और आपका साथ देंगे इंशाल्लाह। जी जी। दूसरा ये बताएं कि यकम को आप हड़ताल कर रहे हैं कि ये खाली एहतजाज कर रहे हैं? पहली फेज में हम एहतजाज पूरे मुल्क में एहतजाज कर रहे हैं, और मेरी गुजारिश है पूरे पाकिस्तान में अवाम से भी कि अब निकल आए बाहर, खुदा के लिए अगर अपने आप को बचाना है और मुल्क को बचाना है। ताजिर बरादरी का मुल्क इंशाल्लाह पूरे मुल्क में आपको चमन से लेकर बावलपुर तक और इधर से अपना गिलगित से लेकर कराची तक, गवादर तक इंशाल्लाह आपको एहतजाज नजर आएगा। मेरे भाई ने बात की कि अपोजिशन, और भाई अपोजिशन और हुकूमत आपस में लड़ रहे हैं, हम अपोजिशन करेंगे, हम इनको बताएंगे कि अब ऐसे नहीं चलेगा। और आपको याद हो इसी हुकूमत ने कुछ अर्सा पहले 3000 रुपये टैक्स लगाया था बिजली के बिलों में। हमने 1 दिन की जो कार दी थी इसकी एहतजाज की, शाम को ही वापस ले लिया था। अब भी हम कह रहे हैं कि सोमवार इतवार शाम से पहले वापस ले ले, नहीं तो फिर उस दिन हम एक नया ऐलान करेंगे इंशाल्लाह। एक मिनट आपसे पूछना चाह रहा था, हुकूमत जब भी आप बैठ